آج ویو 360 میں تقریباً 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے میں گھر پہ فارغ بیٹھا ہوں۔ کورونا سے پاکستانی ٹرانسپورٹرز کی مشکلات میں اضافہ۔ جو ہمارے مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا تھا۔ امریکہ میں رہتے ہوئے پاکستان میں کورونا کے متاثرین کو مدد پہنچانے والی فرحین نوید سے ملاقات، اور دیکھیں کہ بولنے سننے سے محروم ایک انڈونیشین خاتون شفاف ماسک کیوں بنا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ امریکہ میں اس وقت تک کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد تقریباً 1.5 ملین کے پاس ہو چکی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں جو امپیکٹ آیا ہے اس میں ہر سیکٹر متاثر ہوا ہے۔ اس وبا کے باعث پبلک ٹرانسپورٹ، جو بہت سوں کے لیے ٹرانسپورٹ کا واحد ذریعہ ہے، اس وقت پوری دنیا میں مشکل سے گزر رہی ہے۔ یا تو اسے بند کر دیا گیا ہے یا اسے بہت حد تک کم کر دیا گیا ہے، روٹس کم کر دیے گئے ہیں۔ اگرچہ اب حکومت چند گائیڈ لائنز کے ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کھول رہی ہے، لیکن پاکستان میں کورونا وائرس کے باعث ہر قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ کئی ہفتے بند پڑی رہی، جس سے بسوں اور ان کے مالکان کو تو نقصان ہوا، مگر اس صورتحال میں بڑی تعداد میں ڈرائیورز اور ان کا ہیلپنگ سٹاف بھی بے روزگار ہو گیا۔ ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو درپیش مشکلات کے بارے میں ہم جانیں گے لاہور سے ضیاء الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ ان دنوں آپ کسی بھی بس اڈے پر جائیں تو آپ کو نئی بسیں بھی مٹی سے اٹی نظر آئیں گی۔ حکومت نے کورونا وائرس کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ایسے میں بے روزگاری کے دہانے پر کھڑے ڈرائیور حضرات کھڑی بسوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اپنے سے جتن کر رہے ہیں۔ تقریباً 1.5 ماہ سے اوپر ہو گیا ہے میں گھر پہ فارغ بیٹھا ہوں۔ گاڑیاں ہم نے اوپر اٹھا کے نیچے اینٹیں رکھ دی ہیں کہ ان کے ٹائر نہ خراب ہو۔ کم و بیش سر 8-10 لاکھ تک نقصان ہو چکا ہے۔ اس کے میکسیمم جو ٹائر ہیں وہ 3.5 سے 4 لاکھ کے 6 ٹائر ہیں، اور اس کا کم و بیش جو ہمارا انجن آئل ہے وہ 35 سے 40 ہزار کا جو ہے وہ چینج ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹریز ہیں وہ ڈیڈ ہو چکی ہے، جو 35 سے 40 ہزار کی ایک بیٹری ہے۔ گاڑی کھڑی کی ان کے جو انجن بھی جو ہے وہ تیل پانی ایک ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کا انجن ڈیڈ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف مالکان پریشان ہیں کہ اگر بسیں یوں ہی کھڑی رہی تو بینک والے ان کے دروازے پر ہوں گے۔ آپ کو بینک فائنانس کرتے ہیں، آپ وہ گاڑیاں لیتے ہیں اور انہیں پھر آپ رینٹلز جو ہے پر منتھ کی بیسس کے اوپر پے کرتے ہیں۔ ہم نے پیسنجر سے پیسے لے کے ہی بینک کے نظام کو چلانا ہے۔ ایک گاڑی جو ہے وہ صرف ایک بندے کو آمدن نہیں دیتی ہے، اس میں ڈرائیور کو بھی آمدن ہے، ریفریشمنٹ کو بھی، ہوسٹس کو بھی، اور مختلف پیسنجرز کو بھی فیسلٹی ملتی ہے۔ کورونا کے باعث بند ٹرانسپورٹ کے نقصان کا اندازہ تو بس مالکان کو بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جس دن لاک ڈاؤن ختم ہوگا اسی دن صحیح معنوں میں اندازہ لگایا جا سکے گا کہ انڈسٹری کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ٹرانسپورٹ کی بندش سے حکومت کی آمدن بھی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ جب بسیں چلتی ہیں تو موٹر وے یا کسی بھی سڑک پر ان کا ٹول ٹیکس اور دیگر ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں۔ ہم الحمدللہ ایک دن میں 35,000 پیسنجر پورے پاکستان سے لفٹ کرتے تھے، جو آج ایک پیسنجر بھی ہم لفٹ نہیں کرتے۔ ہماری گاڑی ایک ماہ کے اندر تقریباً 45,000 کلومیٹر چلتی ہے ایک بس، اور اگر آپ اس کو 600 بسوں سے ملٹیپلائی کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لاکھ کلومیٹر ہماری گاڑیاں ٹریول کرتی ہیں، جو نہیں ہو پا رہی۔ اسی طرح ہم جو فیول لیتے ہیں گاڑیوں کے اندر ڈالتے ہیں، پیٹرول پمپ کا نظام چلتا ہے، ان کا بھی آگے سلسلہ ہے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ اگر حکومت بسیں چلانے کی اجازت دے گی تو وہ ضوابط کے تحت بس کے ایک طرف ایک مسافر اور دوسری طرف دوسرا مسافر بٹھائیں گے۔ یہ طریقہ کار کاروبار کو بند ہونے سے بچانے میں تو مدد دے دے، لیکن اس سے مناسب آمدن شاید حاصل نہ ہو پائے۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ مسلمان خاص طور پر رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات اور عطیات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلاحی تنظیمیں ہوں یا انفرادی امداد، دونوں صورتوں میں ڈونیشنز بہت حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ امریکہ میں بھی بہت سی فلاحی تنظیمیں ہیں جو مختلف طریقوں سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتی ہیں۔ فرحین نوید ایک ایسی خاتون ہیں جو ہزاروں میل دور رہنے کے باوجود اپنے ہی شہر کراچی کے لوگوں کی مدد کر رہی ہیں۔ انہوں نے دی کراچی آئٹس تنظیم کے ساتھ مل کر غریب اور بے روزگار خاندانوں کے لیے راشن مہیا کرنے کی مہم شروع کی ہے۔ اس مہم کے بارے میں وائس آف امریکہ کے عمران جدون ہمیں مزید بتا رہے ہیں اپنی اس رپورٹ میں۔
कराची से ताल्लुक रखने वाली फरहीन नवीद अमेरिका में मुकीम जरूर हैं, लेकिन अपने शहर के लोगों का ख्याल उनके दिल में अभी भी मौजूद है। जो रोज के कमाने वाले डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हैं, इनको सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना था। तो लोगों ने जब वहाँ से पाकिस्तान से जो लोग जानते हैं उन्होंने राब्ता करना शुरू किया तो हालात बहुत ज्यादा बुरे थे। पाकिस्तान में कोरोना की वबा फैलने के बाद लॉकडाउन के दौरान फरहीन ने 50 खानदानों को मुफ्त राशन फराहम किया, जिसके बाद वो कराची आइट्स नामी एक तंजीम से मुंसलिक हुई। इन हालात में हमने फिर सबने कराची आइट्स के लोगों ने हमने सबने बैठ के ये कहा कि हमें कुछ करना चाहिए। हमने ओवरसीज पाकिस्तानी जो यहाँ पर हैं रह रहे हैं उनको मोबिलाइज किया और उनके साथ मिलकर फूड असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया। द कराचीइट्स एक गैर सियासी फलाही तंजीम है जिसे पाकिस्तानी अमेरिकन ने 2019 में कायम किया। मौजूदा कोरोना बहरान में तंजीम ने फूड असिस्टेंस प्रोग्राम शुरू किया ताकि मुतासरा खानदानों को मुफ्त राशन मुहैया किया जा सके। जहां अमेरिका में मौजूद इस तंजीम के अराकीन इसमें अपना हिस्सा मनसूबा बंदी और माली इमदाद की शक्ल में डालते हैं, तो कराची में मौजूद इसके रजाकार जरूरतमंदों तक इस मदद को पहुंचाकर उनके मंसूबे को अमली शक्ल देते हैं। घर वालों को तो डर जरूर होता है, मेरे घर वाले भी हैं तो वो भी डर रहे थे कि कहीं आपको ना कोरोना वायरस हो जाए। लेकिन जब मैं उनके पास फर्स्ट टाइम गई और उनका प्रोसीजर देखा मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पर एज अ वॉलंटियर जो काम कर रहे थे उनको भी हाथों में जो ग्लव पहने हुए थे, फेस पे मास्क था। इसी वजह से फिर मैंने भी अपने घर वालों को बताया, थोड़ा मुतमईन किया, तो मेरे घर वाले भी राजी हो गए। कोरोना वायरस ने दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में बसे हर तबके को मुतासिर किया है। इसलिए फरहीन कहती हैं कि ये वक्त रंग, नस्ल और मजहब की बिना पर तफरीक का नहीं है। लॉकडाउन तो सबके लिए है ना, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं है। तो आप उनको कैसे जो है ना वो जो माइनॉरिटी जो हमारी है उनको कैसे आप सेग्रीगेट कर सकते हैं। लोगों का इतना बुरा हाल है कि अगर हमारी राशन वाली गाड़ी वहाँ पर जाती है तो लोग बाकायदा बेचारे रो रहे होते हैं, भी मांग रहे होते हैं कि आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा दे दें, इसमें से पूरा बॉक्स ना दें राशन का, लेकिन थोड़ा सा दे दें। फरहीन के घर से छोटे पैमाने से शुरू होने वाला ये फूड असिस्टेंस प्रोग्राम कराची आइट्स की मदद से अब तक पाकिस्तान के सूबे सिंध में 6000 से ज्यादा खानदानों को लॉकडाउन में राशन फराहम कर चुका है। इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोरोना वायरस से मुतालिक रिपोर्ट्स हम जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक बासलाहियत और बाहौसला पाकिस्तानी खातून के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की अस्मा बंगश का ताल्लुक कोहाट के क़दामत पसंद गाँव से है, जहाँ आज से 20 साल पहले लड़कियों की तालीम को मौजूदा दौर की निस्बत इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन अस्मा इस मामले में खुशकिस्मत रही। इस वक्त वो अमरीका में मुकीम है और अमरीकी महकमा खारजा के फुलब्राइट स्कॉलरशिप के प्रोग्राम के तहत उन्होंने 1 साल यहाँ गुजारा है। उनका ये 1 साल यहाँ कैसा रहा, आइए उनके इस सफ़र की कुछ झलकियाँ देखते हैं। एक वकील होने के साथ साथ अस्मा बंगश ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल भी हैं और इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के ह्यूबर्ट हम्फ्री फेलो प्रोग्राम के तहत 95 मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले 149 शुरका में से एक हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एक क़दामत पसंद इलाके से ताल्लुक रखने वाली अस्मा अपनी प्रोफेशनल सलाहियतों में इजाफे के लिए इससे पहले स्वीडन और अमेरिका का सफर कर चुकी हैं। ख़ास तौर पे मैं अपने वालिद का जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने हमारी तालीम के लिए बहुत मेहनत की, बहुत कुर्बानियाँ दी और हमेशा हमारे साथ खड़े रहे। कभी भी मुझे नहीं महसूस हुआ कि उन्होंने मेरे भाइयों में और हम में कोई फ़र्क किया हो। उनके वालिद ने 2 दहाई कबल अपने बच्चों को साथ लिया और मकामी रिवायात के बरखिलाफ उनकी तालीम को अहमियत देते हुए गाँव छोड़ दिया। लेकिन बेटों के साथ साथ उनकी बेटियों ने उन्हें कभी मायूस नहीं होने दिया। आज मैं वकील हूँ, जबकि मेरी 2 बहनें हैं और दोनों ही डॉक्टर्स हैं और माशाल्लाह अपनी फील्ड्स में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज ये सब कुछ देखने के लिए मेरे वालिद हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। अस्मा के वालिद सन 2015 में पेशावर के इलाके हयाताबाद में होने वाले एक खुदकुश बम धमाके में हलाक हो गए, लेकिन बच्चों ने कामयाबियों का सफर जारी रखा। अस्मा ने अपनी ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलोशिप अमेरिकी दारुल हुकूमत में वाक़ई अमेरिकन यूनिवर्सिटी में मुकम्मल की। इसको दुनिया का बेहतरीन प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। पहला कंपोनेंट ऑफ कोर्स एकेडमिक से रिलेटेड है, आपको पढ़ना पड़ता है, आपको अपने क्रेडिट्स पूरे करने पड़ते हैं। उसके अलावा आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है। थर्ड कंपोनेंट उसका है वो है नेटवर्किंग का, उसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ विजिट करते हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा ये पूरा साल। ह्यूबर्ट एच हम्फ्री फेलो प्रोग्राम पिछले 40 सालों से अपनी प्रोफेशनल इस्तात बढ़ाने के ख्वाहिशमंद अफराद को दुनिया भर से हर साल अमेरिका आकर तालीम और तरबियत का मौका देता है।
इस प्रोग्राम के तहत अब तक 6000 से ज्यादा प्रोफेशनल्स अमेरिका आकर अपने प्रोफेशनल कद में इजाफा कर चुके हैं। अस्मा की फेलोशिप भी कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन कोरोना वायरस ने उनकी ग्रेजुएशन पर भी असर डाला है और बाकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की तरह उनकी ग्रेजुएशन भी ऑनलाइन हो रही है। Particularly the Islamic world understand that they are not limited in any way due to their religion, and I applaud you for that. अस्मा कहती हैं कि औरत आज भी मुआशरे में अपने जायज़ मकाम के लिए तगोदा कर रही है। वो चाहती हैं कि उसे इज्जत और गैरत की बजाय एक इंसान समझा जाए और उसे उसकी ज़िंदगी और फैसलों पर वो इख्तियार दिया जाए जो उसे कानून और मजहब दोनों देते हैं। सादिया ज़बरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, बेथेस्डा, मैरीलैंड। कोरोना वायरस के बारे में अपडेट्स और दुनिया भर की मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/urduvoa। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। गुज़िश्ता हफ्ते दर्जनों मुजाहिरीन ने अमरीकी रियासत मिशिगन के दारुल हुकूमत में कारोबारी बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। पिछले चंद हफ्तों में इस तरह के कई मुजाहिरे अमरीका के दूसरे शहरों में भी हो चुके हैं, क्योंकि एहतजाज करने वाले लोग समझते हैं कि हुकूमत का उनकी जिंदगियों पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। बारिश के बावजूद जुमेरात को दर्जनों मुजाहिरीन ने रियासत मिशिगन के दारुल हुकूमत लैंसिंग में रियासत की जानिब से बंदिश के अहकामात पर मायूसी का इजहार किया। रोजगार कमाना हमारा हक है। वो ये नहीं कह सकते कि आप काम पर नहीं जाए, ये हमारा हक है। हम यहाँ मिशिगन को मुकम्मल तौर पर खोलने की हिमायत के लिए आए हैं। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। हुकूमत जुल्म कर रही है, इसका कोई जवाब नहीं। वो इसे टीबी और ताउन की वबा से मुमासलत दे रहे हैं। ये मसला तो है, मगर इसका इलाज उन्होंने जो चुना है वो बीमारी से ज्यादा खराब है। अमेरिका भर में छोटे बड़े शहरों में इस तरह के मुजाहरे हो रहे हैं जिनका मकसद कारोबार खोलने के लिए हुकूमत पर दबाव डालना है, मगर ऐसे एहतजाज मुख्तलिफ नजरियात और मकासद रखने वाले अफराद जैसे असला रखने के हामी, वैक्सीन के मुखालिफ और ट्रंप इंतजामिया के हामियों को भी मौका फराहम करते हैं कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएं। ये मुकम्मल तौर पर ताकत पर कब्जा करना है। दौलत की इस तरह की मुंतकली दुनिया में पहली बार देखने में आई है। लोग हलाक तो हो रहे हैं, मगर उनमें से अमवात की निस्फ तादाद तो हकीकी भी नहीं है। एहतजाज करने वालों में बेशतर इन पाबंदियों को आज़ादी पर कदगन समझते हैं और वायरस के बारे में मालूमात के बारे में अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तज्जियानिगार समझते हैं कि इस तरह के पैगाम दाएं बाजू के नजरियात की हामी तंजीमों की जानिब से फैलाए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ तरीकों से ऐसे मुजाहिरीन की हमायत करते हैं और सियासी फायदा उठाते हैं। One is by providing them basically urging them to do the protests and providing them। एक तो ये है कि उन्हें एहतजाज के लिए उकसाना और उनकी रहनुमाई करना कि कैसे प्रेस में मुजाहिरे की कवरेज को मुमकिन बनाया जाए। एक और चीज जो देखने में आ रही है वो ये है कि कैसे सोशल मीडिया और वेबसाइट्स को न सिर्फ एहतजाज के लिए मुतहद करने के लिए इस्तेमाल किया जाए, बल्कि अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए तवील मुद्दती बुनियादों पर सियासी आले के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए। पाबंदियों के हक के हामी खुसूसन मास्क पहने तिबी अमले के अराकीन भी एहतजाज में शरीक हुए हैं। जॉन ने मुजाहरे में इसलिए शिरकत की क्योंकि वो मुसल्ला अफराद की मौजूदगी से परेशान थे, मगर कुछ के लिए एहतजाज करना बस दूसरों की मुआशी मुश्किलात के लिए अपनी आवाज बुलंद करना है। मैं खुसूसन छोटे कारोबारों के लिए यहाँ आई हूँ जो इस वक्त मुश्किल में हैं, जो मजबूरन बेरोजगार हुए और जिन्हें अपने खानदान को खुराक फराहम करने में मुश्किल दरपेश है। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि इस तरह के मुजाहिरों का असर हो रहा है। गुज़श्ता हफ्ते रियासत विस्कॉन्सिन की आला अदालत ने डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गवर्नर के घरों में बंद रहने के अहकामात को गैर कानूनी करार देकर रिपब्लिकन कानून साजों की हमायत की। मैट डिबल के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।
دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح امریکہ میں بھی رمضان کے دوران کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مساجد کو بند کر دیا گیا۔ علماء اور نمازی اگرچہ مساجد کی بندش سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کی صحت کے لیے مساجد کو بند کرنا مذہب کے منافی نہیں ہے، اس لیے اس عالمی وبا کے دوران صحت سے متعلق گائیڈ لائنز کو فوقیت دی جا رہی ہے۔ تفصیلات دیکھیے ہماری افغان سروس کی اس رپورٹ میں جو کہ پیش کر رہی ہیں نیلوفر مغل۔ یہ امریکی ریاست ورجینیا کے شہر اسپرنگ فیلڈ میں واقع مدینہ مسجد ہے۔ یہاں لوگ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے آتے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے اب یہاں نمازی دکھائی نہیں دے رہے۔ مسجد کے بند ہونے سے ہماری کمیونٹی اور ہماری برادری کو تشویش ہے۔ یہ 1400 سالوں میں پہلا موقع ہوگا کہ ہر جگہ مسجد کو بند کر دیا گیا ہے۔ تراویح، افطار اور دیگر پروگرام بند ہیں اور ہم اس پر افسردہ ہیں۔ مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ وبائی امراض کے دوران گھر میں رہنا اور مسجد نہ آنے کی ہدایات پیغمبر اسلام کی طرف سے آئی ہیں۔ دوسروں کو نقصان سے بچانا واجب ہے۔ لوگوں نے مساجد کو خوشی سے بند نہیں کیا۔ مساجد کو بند ہوتے دیکھنا اور لوگوں کا نماز کے لیے نہ آنا تکلیف دہ تو ہے، لیکن کورونا وائرس کی منتقلی کو روکنے کے لیے مساجد کو بند کرنا لازمی ہے۔ کورونا وبا کی وجہ سے امریکہ میں اس سال مسیحیوں نے ایسٹر اور یہودی کمیونٹی نے پاس اوور جیسے مذہبی تہوار گھروں پر ہی منائے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ حکام رمضان سے متعلق کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آیا حکام رمضان المبارک کے دوران مساجد کے لیے سماجی دوری کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے گرجا گھروں میں ایسٹر کے دوران کیا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر یو ایس اسلامک کونسل نے رد عمل کا اظہار کیا ہے، لیکن کچھ شہری مستقبل کے بارے میں پر امید ہیں۔ انسانی نقطۂ نظر سے ہم ایک ساتھ مسجد میں عبادت کرنا چاہتے تھے، رمضان میں تراویح پڑھنا چاہتے تھے، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں۔ بچے یہاں مساجد میں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، لیکن کورونا کی وجہ سے اب وہ آن لائن تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تقریباً 200 لڑکے اور لڑکیاں پڑھتے ہیں جن کی عمریں 5 سے 6 سال ہیں۔ ہم نے انہیں آن لائن کلاسز کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اسکول بند ہے اور وہ اپنے گھروں پر ہیں۔ ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ گھروں پر رہیں۔ رمضان کے دوران امریکہ بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 2100 مساجد بند رہیں گی۔ وحید فیضی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ امریکہ میں افغان کمیونٹی نے اس سال رمضان کا مہینہ کیسے گزارا، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کی افغان سروس کے وحید فیضی سے، جنہوں نے یہ رپورٹ بھی بنائی تھی۔ وحید، بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ امریکہ میں جو افغان تارکین وطن رہ رہے ہیں ان کے لیے اس دفعہ رمضان کا مہینہ کورونا وائرس کی وجہ سے کتنا مختلف تھا؟ اس سال امریکہ میں رمضان کا مہینہ سبھی کے لیے بہت مختلف ہے، خاص طور پر افغان کمیونٹی کے لیے۔ جن لوگوں سے بھی میری پچھلے چند دنوں میں بات ہوئی ہے وہ وفاقی اور ریاستی لاک ڈاؤن کے احکامات کی وجہ سے گھروں تک محدود ہیں، خاص طور پر ریاست ورجینیا میں۔ زیادہ تر لوگوں کی نوکریاں نہیں رہی اور جو لوگ کام کر بھی رہے ہیں وہ بھی گھروں سے کام کر رہے ہیں۔ میری افغان کمیونٹی کے چند افراد سے بات بھی ہوئی، وہ اس عالمی وبا کی وجہ سے کیے گئے لاک ڈاؤن کے نتیجے میں مساجد نہیں جا رہے۔ یہ افغان کمیونٹی کے لیے رمضان کے مہینے میں بہت بڑی تبدیلی ہے۔ سچویشن افغانستان میں کیسی ہے؟ سوشل ڈسٹینسنگ جو آپ مینٹین کر رہے ہیں وہاں پہ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائنز دی گئی ہیں کتنا فالو کی جا رہی ہیں عوام کی طرف سے، اور کس حد تک گورنمنٹ امپلیمنٹ کر پا رہی ہے افغانستان میں سوشل ڈسٹینسنگ کووڈ-19 کی وجہ سے؟ افغانستان کے دوسرے مسائل کے ساتھ ساتھ اب کورونا وائرس کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ افغانستان میں عوام اس وقت 2 حصوں میں بٹے ہیں۔ بڑے شہروں جیسا کہ کابل وغیرہ میں ایک طبقہ سماجی دوری کے حکومتی احکامات پر عمل کر رہا ہے، جبکہ ایک دوسرا طبقہ ہے جو اس پر عمل نہیں کر رہا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ غریب ہیں اور اگر وہ کام نہیں کریں گے تو گزر اوقات مشکل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے جو کہتے ہیں کہ چونکہ انہیں امداد نہیں ملی اس لیے انہیں کام کے لیے شہروں میں جانا پڑے گا۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں سوشل ڈسٹینسنگ ریکمینڈ کی جا رہی ہے۔ اگر آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین نہیں کر پا رہے تو آپ فیس ماسک پہنیں۔ کووڈ-19 نے دنیا بھر کے کئی ملکوں میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو فیس ماسک پہننے پہ مجبور کر دیا ہے، مگر ایسے افراد جو گویائی اور سماعت سے محروم ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب وہ فیس ماسک پہنتے ہیں تو لوگ ان کی بات سمجھ نہیں پاتے۔ انڈونیشیا میں ایسی ہی ایک خاتون نے اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ کیسے، یہ دیکھیں گے ہم اس رپورٹ میں۔
कोविड-19 से बचने के लिए चेहरे पर मास्क पहनना एक आम बात है, लेकिन ये वी रहायू जैसी खातून के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रही है। योग यकार्ता की रहायशी वी रहायू पैदाइशी तौर पर समात और गोयाई से महरूम हैं। वो इशारों की जबान में बात करती हैं और लोगों के होंठों की जुम्बिश पढ़ते हुए उनकी बात समझती हैं। चूँकि उनके लिए लोगों के हिलते होंठ देखना जरूरी है, इसलिए उन्होंने प्लास्टिक शीट्स इस्तेमाल करते हुए एक शफाफ या ट्रांसपेरेंट मास्क तैयार किया है। कोविड की वबा शुरू होने से पहले ही मुझे लोगों से बात करने में मुश्किल होती थी। फिर उन्होंने मास्क पहनने शुरू कर दिए। बात और भी मुश्किल हो गई क्योंकि मुझे उनके होंठों की जुम्बिश और उनके चेहरे के तासुरात नजर नहीं आते थे। इनके शौहर जो खुद भी क़ुव्वत समात से महरूम हैं, उन्होंने घर पर ये मास्क बनाने शुरू कर दिए और कम्युनिटी में अपने जैसे लोगों में बांट रहे हैं। इंडोनेशिया में क़ुव्वत गोयाई और समात से महरूम अफराद के लिए इशारों की कोई एक जबान नहीं है। योग यकार्ता और दारुल हुकूमत जकार्ता जैसी जगहों में लोग बेसिंडो नामी जबान इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली इशारों की जबान से मिलती जुलती है। अब चूंकि हर शख्स मास्क पहनता है, मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आती। अक्सर मैं उनसे मास्क उतारने को कहता हूं, मगर ज्यादातर लोग नहीं मानते। अगर उन्होंने ट्रांसपेरेंट मास्क पहना हो तो बातचीत में आसानी हो जाती है। योग यकार्ता में माजूर अफराद के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम सिकाप के मुताबिक ट्रांसपेरेंट मास्क की अहमियत आम लोगों में फैलाना बहुत जरूरी है ताकि वबा से बचने के लिए मिलकर काम किया जा सके। सिकाप का कहना है कि गूंगे बहरे अफराद की तरफ से इस किस्म का इक़दाम हुकूमत की सरपरस्ती में होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए ये बात अहम होनी चाहिए कि वो ट्रांसपेरेंट मास्क बनाएं और उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें। ताहम क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम इस कम्युनिटी के कई लोग इशारों की जबान के इस्तेमाल के लिए और साथ ही इस वबा का मुकाबला करने के लिए सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नूर हादी सुचायो के साथ नुक़बत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस की वबा के बाद अमेरिका में इस वक्त बेरोजगारों की तादाद पाकिस्तान की टोटल वर्क फोर्स के तकरीबन निस्फ यानी तकरीबन 4.25 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यह तादाद ग्रेट डिप्रेशन के दौरान होने वाली बेरोजगारी के बाद सबसे ज्यादा है, जिसमें लोगों के पास कोई काम नहीं है। हुकूमत उन्हें बेरोजगारी अलाउंस दे रही है। मालियाती माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि इन हालात में घरों की कीमतें भी गिरेंगी, शरह सूद भी मुसलसल कम रहेगी, जो कि ऑलरेडी बहुत कम सतह पे है। ये वो अवामिल हैं जो चंद नौजवानों को अपना पहला मकान खरीदने में आसानी का बायस बन सकते हैं। माहिरीन ने पेशगोई की है कि कोविड लॉकडाउन के बायस बेरोजगारी में होने वाले बड़े इजाफे से अमेरिका में घरों की कीमतें शायद लंबे अरसे के लिए गिर जाएं और बहाली मुमकिन ना हो। एक कमजोर मार्केट में मेरा अंदाजा है कि कीमतों में आमतौर पर मंदी रहती है। हम जानते हैं कि पिछले 5-6 हफ्तों या इससे ज्यादा अरसे में 3 करोड़ से ज्यादा अफराद अपना रोजगार खो चुके हैं। एक कमजोर मंडी का मतलब है कि मुमकिना लेन देन की कीमतों में कमी। Lower prospective transaction prices. माहिरीन का कहना है कि 21वीं सदी में पैदा होने वाले अफराद जो 2008 के माली बहरान के दौरान बड़े हुए, शायद वो इस मार्केट का अंदाजा लगाने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हों। वो उस दौर में बड़े हुए हैं जो माशी तौर पर ये बहुत मुश्किल था, और इसी वजह से मैं समझती हूँ कि वो खरीदारी के माली मामलात की अच्छी समझ बूझ रखते हैं, तो वो बगौर इन आदात को देख रहे हैं। तैयार होने के साथ कीमतों में कमी के बायस शायद ज्यादा नौजवान अपना पहला घर खरीद पाएं। इसमें से बहुत कुछ का ताल्लुक बजट से है और अपनी इस्तेताअत को जानना है और ये कि हम फिर कब काम पर जा सकेंगे। माहिरीन कहते हैं एक बड़ा सवाल यह है कि घरों की खरीदारी पर वबा किस तरह असरअंदाज होगी। इसका ताल्लुक घर की लोकेशन से होगा। मेरे ख्याल में लोग कहेंगे कि ठीक है, इस दफा हम इस वबा से बच गए हैं, लेकिन अब हमें ज्यादा गुंजान शहरी आबादियों में नहीं रहना, क्योंकि ये वो जगह हैं जहां वबा तेजी से फैलती है। हमें ज्यादा खुली जगहों पर रहना है, फिर चाहे वो शहरों से नजदीक मुजाफात हो या दूर। Just don't want to be in a high density urban area. माहिरीन का कहना है कि मार्केट पर वबाई मर्ज के असर को पूरी तरह से दिखाई देने में कई साल लगेंगे। ईशा सराय के साथ सबा शाह खान, वॉइस ऑफ अमेरिका। वीडियो 360 से अब तक के लिए इतना ही। असद खालिद को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।